हाय गाइस, वेलकम टू टुडेस वीडियो एंड होप सो दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डग फॉर्ड का एक और स्टेटमेंट आया, वो चुप बैठ ही नहीं रहे। और साथ ही साथ एक बच्चे ने मेरे साथ शेयर किया है देयर होल कहते हैं होल जर्नी, वो यूएस के थ्रू गए थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो अभी लॉकडाउन में गए हैं, मैंने एक दो दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट डाली थी उसके रिलेटेड। और साथ ही साथ अगर आपका मेडिकल फिर से रीमेडिकल कराया है, आपने फ्लाइट आपकी बुक हो गई थी लेकिन जो नहीं जाने दे रहे थे उसके, और आपका एक्टिवेट वीज़ा होगा तो आपको कैसा मेल आएगा वो भी हम पूरी वीडियो में देखेंगे। सो बने रहिए। सो लेट्स बिगिन। जो आप पहले अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, डग फॉर्ड ने एक ट्वीट किया है। द सूनर वी स्टॉप लेटिंग वेरिएंट्स एंटर इनटू कनाडा, द सूनर वी कैन गेट अहेड ऑफ दिस वायरस. Ontarians have made tremendous sacrifices in our fight against COVID-19. It's not fair that we continue to put the onus on Ontarians when we continue to import cases from abroad. So इसमें अगर आप पूरा इसका करस देखें तो इसका यही कह रहे हैं वो लोग कि हम ऑन्टेरियंस को एम करें, उंगली करें, वैसे बात नहीं है। खुद जो बाहर से केसेस आ रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने एक इमेज अटैच की थी जिसमें पॉजिटिव कोविड आए थे अप्रैल 30 से लेके मई 3 तक। सो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता ही है कि ये इंटरनेशनल ट्रैवल को कर रहे हैं डिमोटिवेट। देखते अभी इसके रिलेटेड क्या जो फेडरल गवर्नमेंट यानी कि जस्टिन ट्रूडो का क्या स्टेटमेंट आता है, वो भी जैसे आएगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो जो मेल आपको आता है वो तो गुड मॉर्निंग, वी रीएक्टिवेटेड योर वीज़ा, added a note to your file regarding the new medical information in case CBSA officers have any questions. Sincerely quoted. ये आप पूरा मेल अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये मेल इनको आया था। सो ये इन्होंने मेरे साथ शेयर किया था, थैंक यू यार। और ये थी मेल की बात। अभी हम आते हैं ओके। सो अभी हम देखते हैं ट्रैवल एक्सपीरियंस जो उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे पूरा लिख के शेयर किया था। थैंक यू यार मेरे साथ शेयर करने के लिए। तो माई ट्रैवल जर्नी फ्रॉम इंडिया टू कनाडा वाया यूएसए थी इनकी। आफ्टर फ्लाइट वैन हुई तब my initial travel plan was on May 5 Ahmedabad to Delhi, then to Toronto. On April 23 all direct flights were suspended and my AL was expiring on May 15. Okay, I had lost all hopes, but with the option of non direct flights open and after a lot of suggestion from admins and others, I decided to fly USA without much ado. Book ticket for May 1st. उन्होंने May 1 की बुक की थी। उनके पास B1 और B2 वीजा होल्डर थे। वो यूएस इमिग्रेशन वाज अ बिट ट्रिकी, द ऑफिसर वाजंट कन्विंस्ड टू लेट मी गो। Also, the flight suspension from May 4 was already announced by the time I landed. I have my relatives in the USA, so accommodation was not a problem. Landed on May 2 and got myself tested, RT-PCR and antibodies test in New Jersey, USA on May 3. Thankfully, there was no mandatory quarantine rule in USA. Left for Canada on May 4. My relatives drove me to the US border. Initially, I had planned to walk and cross the Rainbow Bridge, but due to excessive luggage and being alone, I took a taxi from the US borders to the Canada border. Nobody is allowed to enter the bridge from either way, so it was just me. Crossed the Rainbow Bridge in the taxi. The immigration officer checked my documents and asked a few questions. Where are you from? Why are you traveling to Canada? Check my COVID reports and then sent me to another office. I was not supposed to move out of taxi and stay inside. I had entered the Canadian border at 6 p.m. and was allowed to leave at 8 p.m. The second immigration officer inquired a lot about how did you reach the border, if I took the Buffalo airport route, etc. He then left saying he will be back with test details and PR details. He came back after 1 hour. He apologized for the delay and said we are cross-checking your COVID positive report. I was positive in March. He then spoke for the golden words, welcome to Canada. I was tested again at the border. I saw at least 5 people crossing the border using the pedestrian walkway on the Rainbow Bridge. Thank you everyone for all the help. Canada process visa travel. Okay. So ये थी एक एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर करना चाहता था। सी ये प्रैक्टिकली देखने जाए तो इनके पास बहुत बैकवर्ड सपोर्ट था। उनके रिलेटिव्स थे, उनके पास वीज़ा था, सो उनको इतना टफ नहीं पड़ा। लेकिन एज अ स्टूडेंट, एज अ मिडिल क्लास फैमिली जो हम सब 90% लोग आते हैं, हमारे लिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर हम देखें तो अगर आपके पास है देन यू कैन अरेंज सच थिंग। लेकिन ये तो सिर्फ शेयर कर रहा था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अगर कोई गया हो तो शेयर कीजिए, इसलिए मैं शेयर कर रहा था। सो प्लीज़ यार अभी वेट कीजिए, ऐसा कुछ मत कीजिए। इनके पास तो उनके रिलेटिव्स थे यूएसए में, वो उनको लेके आए गाड़ी में। हम अगर जाए कोई बिना पहचान के तो फिर इश्यू होगा ही होगा। सो प्लीज़ डोंट ऐसा रिस्क बिल्कुल लीजिए मत जब तक आपके पास सब फुल प्रूफ प्लान ना हो। आपके पास एक मिनट का प्लान होना चाहिए अगर आप कोई भी इनडायरेक्ट फ्लाइट चूज करें तो। ये बात हमेशा आपके दिमाग में रखिए।
वरना तो आप वेट कीजिए थे, क्योंकि अभी कनाडा बॉर्डर्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। सो वो लोग आपको रोक भी सकते हैं। ये तो चलो भगवान की दया से चलो निकल भी गए, लेकिन आपके पास कुछ भी हो सकता है। सो यू नीड टू बी श्योर कि आपके पास ऑल साइड्स आर प्रोटेक्टेड हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, और एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज हम ऐसे कनाडा रिलेटेड अपडेट शेयर करते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back?